Hello, today I will discuss about the thermoelectric conversion and thermionic conversion. So first of all, that how to calculate the total sun energy when it comes on the surface of the plate, then how the heat energy is converted into the form of electrical energy. So in the thermoelectrical energy, we study that how the energy is to be converted from heat energy to the electrical energy. So in this topic we discuss about thermoelectrical conversion and how the different processes from which we convert the energy from one form to the another form. तो थर्मोइलेक्ट्रिकल कन्वर्जन क्या है? द टोटल हीट एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू semiconductor either conductor. So this process is based on the Seebeck effect. तो बेसिकली जो थर्मो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन है उसमें हम लोग हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो प्रोसेस है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? दैट वन इज द सीबैक इफेक्ट. तो सीबैक इफेक्ट है ये आपका, ये जो प्रोसेस है वो सीबैक इफेक्ट पे बेस्ड है. सिमिलरली थर्मियोनिक कन्वर्जन क्या है कि इन थर्मियोनिक conversion heat energy is directed converted into electrical energy as similar to the thermoelectrical conversion by the utilization of thermoionic emission effect. In the thermionic emission effect, the electrons are emitted from the surface of heated metal. So in this video we discuss about thermoelectrical conversion, and in the next video we discuss about thermionic conversion. So thermoelectrical conversion, the four different processes from which we convert the energy from one form to the another form. So first is the Seebeck effect. In the Seebeck effect, the definition of the Seebeck effect is, it states that if a closed circle is made of two dissimilar metals and the two junctions are maintained at different temperature, then an EMF will be produced in the circuit. इसका ये मतलब हुआ कि अगर दो डिसिमिलर मेटल्स हैं और वो क्लोज सर्किल में एक दूसरे से जॉइंट हैं, तो उनके बीच में एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसके कॉज के वजह से हमें करंट मिलेगी. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन बोथ द मेटल्स एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शंस. सो हियर Seebeck effect introduce that two metals, this one is metal 1, this one is metal 2. Suppose that this one is the copper, this one is the aluminum, both property is different. Here the junction, cold junction, this one is the hot junction. When the Seebeck effect occurs, then a current is to be formed from hot junction to the cold junction. So this one is the Seebeck effect principle for thermocouple. So EMF produced is the function of the difference in temperature between hot and cold junction. E is equal to the alpha s delta t, जहाँ delta t है डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड जंक्शन, एंड अल्फा जो है वो हमारा Seebeck कोफिशिएंट है, Seebeck कोफिशिएंट. तो बेसिकली Seebeck इफेक्ट इज कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. तो ये आपका फॉर्मूला है, जो टोटल हीट है दैट इज इक्वल टू द अल्फा इनटू डेल्टा टी. तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं ईएमएफ, इंड्यूस मैग्नेटिक फोर्स. ईएमएफ प्रोड्यूस दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर. चेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स दिस T2 माइनस T1. T2 जो हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है और T1 जो है कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है. तो दिस वन इज द Seebeck इफेक्ट. सेकेंड वन इज द Peltier इफेक्ट. वी नो दैट Peltier इफेक्ट is reverse of the
seat back effect. In the seat back effect, we know that when the two metals are joined and the temperature transfer from hot body to the cold body, then an EMF is generated. So from from the EMF we produce the current. But in the Peltier effect, it is the reverse of the seat back effect. Direct when an electrical flows across a isothermal junction of two dissimilar material, there is absorption or release of the heat at the junction. This effect is called as Peltier effect. So here you know that यहाँ पे जो करंट है वो करंट का फ्लो जब भी किसी आइसोथर्मल जंक्शन में हो रहा है तो उस करंट के फ्लो के वजह से जो हीट है वो एब्जॉर्प्शन होगी और इसके वजह से जो हमारा इफ़ेक्ट है वो पेल्टियर इफ़ेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट मेटल सेकंड मेटल ये दोनों को आपस में हमने ऐड कर दिया है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है तो करंट फ्लो होने के वजह से ये हमारा जो Q है दैट Q ये हियर दैट इज़ द EMF इज इंड्यूस पेल्टियर इफेक्ट दैट कॉज्ड। सो अल्फ़ा जो हमारा पेल्टियर इफेक्ट कोफिशिएंट है अल्फ़ा P12, P से पेल्टियर अल्फ़ा से कोफिशिएंट है अल्फ़ा P12 मतलब अल्फ़ा P1 माइनस अल्फ़ा P2 इसका कोफिशिएंट माइनस इसका कोफिशिएंट। यू नो दैट दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू द QP अपॉन I, मतलब कितना पेल्टियर इफेक्ट्स का EMF है टू द रेशियो ऑफ I पेल्टियर इफेक्ट पर यूनिट टाइम जो इसका पेल्टियर इफेक्ट है। सो QP इज इक्वल टू I इंटू P12। So Peltier coefficient is defined as the heat evolved or absorbed at the junction per unit current flow per unit time. So this one is the Peltier effect. तो Peltier effect जो है वो रिवर्स है सीट बैक इफेक्ट का। तो सीट बैक इफेक्ट अगर हम दोनों को एक लाइन में बताने की कोशिश करें तो जो सीट बैक इफेक्ट है जो टेम्परेचर डिफरेंस लीडिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा था T2 हॉट है T1 कोल्ड है दोनों की वजह से T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस होगा दैट लीड्स द पोटेंशियल डिफरेंस जिसके वजह से हमें यहाँ पे देखिए डेल V दिस V डेल V पोटेंशियल डिफरेंस अकर्स बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। और जो पेल्टियर इफेक्ट है ये वाला दैट पोटेंशियल डिफरेंस लीडिंग टू द टेम्परेचर डिफरेंस। इट मीन्स दैट जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कॉज होगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज अक्रॉस ए टर्मिनल देन द पोटेंशियल डिफरेंस लीडिंग द टेम्परेचर डिफरेंस। सो दिस वन इज द पेल्टियर इफेक्ट। थर्ड वन दैट इज द जूल्स इफेक्ट। In the Joule's effect, in the closed circuit, if the current I flows through a resistance R, when the current I flows in between a resistance R, a voltage is to be obtained. The heat generated by the resistance is equal to the P is equal to VI होता है, V is equal to IR, that is I square R. It is known as the Joule effect. So total Joule effect, that heat dissipated or heat generated, that is equal to the I square R. P is equal to VI, हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला, V is equal to IR. So here P is equal to I square R. तो जूल्स इफेक्ट ये इंडिकेट करता है कि जब भी किसी सर्किट में क्लोज सर्किट में करंट का फ्लो होता है दैट फ्लो ऑफ द करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस आर द हीट इज जनरेटेड by the resistance is equal to the I square R. It is known as the Joule effect. The last one, fourth one is the Thomson effect. तो जो हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन पढ़ रहे हैं उसमें मेन यही है कि जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो देयर आर द वेरियस प्रोसेसेस दैट कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वन इज़ द सीट बैक इफेक्ट, अभी हमने डिस्कस किया। सेकेंड वन इज़ द पेल्टियर इफेक्ट जो कि सीट बैक का रिवर्स है। थर्ड वन इज़ द सिंपल, कोई लूप है क्लोज लूप है उसमें करंट फ्लो हो रही है वोल्टेज जनरेट होगा सो EMF प्रोड्यूस होगी। सो दिस वन इज़ द जूल इफेक्ट। द लास्ट वन इज़ द थॉमसन इफेक्ट। इन द थॉमसन इफेक्ट इट स्टेट दैट एनी करंट कैरिंग कंडक्टर विथ ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन
two points will either absorb or release the emit. Release means emit the heat डिपेंडिंग अपॉन द मटीरियल। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी सेमी कंडक्टर में या कंडक्टर में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, देन या तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा या हीट को एमिट करेगा, रिलीज करेगा। हियर थॉमसन कोफिशिएंट इसको हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, दैट इट इज़ डिफाइंड एज द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट करंट एंड पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो थॉमसन कोफिशिएंट को सिग्मा से हम इंडिकेट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द हीट एब्जॉर्ब और हीट क्विट रिलीज पर यूनिट टाइम डी क्यू टी अपॉन डी एक्स टू द पर यूनिट करंट एंड पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे थॉमसन इफेक्ट, इस थॉमसन इफेक्ट्स कोफिशिएंट को हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। दैट इज इक्वल टू, डायरेक्ट एज ए फार्मूला वी हैव टू लर्न आई इंटू डी क्यू टी अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी अपॉन डी एक्स। जो आपका डी क्यू टी अपॉन डी एक्स है, इसको कहते हैं हीट इंटरचेंज पर यूनिट टाइम पर यूनिट लेंथ। जो डी एक्स है वो चेंज इन लेंथ है, वेयर आई इज़ द करेंट। दूसरा जो है दैट इज़ थॉमसन हीट पर यूनिट टाइम। अगर हम थॉमसन हीट पर यूनिट टाइम को देखेंगे, दैट इज़ इक्वल टू डी क्यू टी अपॉन डी एक्स, दैट इज़ इक्वल टू द सिग्मा आई डी टी अपॉन डी एक्स। तो जो आपका डी टी अपॉन डी एक्स है, दैट इज़ इक्वल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो जो भी थॉमसन इफेक्ट है, वो थॉमसन इफेक्ट इट इंडिकेट्स अबाउट दैट हाउ मच ए कंडक्टर फ्रॉम द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू different terminals will either absorb the heat, either release the energy। तो ये आपका फिगर है। सपोज दैट I here, that one T1 is the temperature gradient, hot temperature, T2 is the lower temperature, T2, so the temperature gradient that is equal to T1 minus T2। जो भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस कम टेम्परेचर से हम रिड्यूस कर देंगे, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू द डी क्यू टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आई डी टी अपॉन डी एक्स। तो अभी हमने जो 4 टॉपिक डिस्कस किया है, ये आपका सीडबैक इफ़ेक्ट, पेल्टियर इफ़ेक्ट, इन चारों में अगर आप देखेंगे तो चारों का मेन काम क्या हो रहा है कि हमें जो भी एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी हमारा ओम्स लॉ है, किरचॉफ लॉ है कि हाउ टू ऑब्टेन द electrical energy into the form of current when we produce the current। so there are the different phases from which, from one Seidel effect we can see that from the potential difference we obtain the current, we change of temperature gradient causes the change of voltage, it means that potential difference, and this potential difference create a current। so when the temperature different for the two materials that are attached in such a manner with the help of the thermocouple, then there are the phenomena that a differential voltage is to be obtained, and by this differential voltage we obtained a current। Similarly in the Peltier effect, from the current we convert into the form of voltage, and that voltage causes, that is equal to the potential difference, and this potential difference leading to the temperature difference। तो ये जनरली आपका अक्सर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द सीडबैक इफेक्ट, व्हाट इज़ द पेल्टियर इफेक्ट, व्हाट इज़ द जूल्स इफेक्ट, व्हाट इज़ द थॉमसन इफेक्ट। तो ये चारों के जो चारों हमने अभी डिस्कस किया है, वो चारों थर्मो इलेक्ट्रिकल कन्वर्ज़न के ही पार्ट हैं, और इस थर्मो केमिकल कन्वर्ज़न में हम लोग देखे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपली जूल्स इफ़ेक्ट ये आप लोग देखे भी हैं कि जो भी हमारा हीट है वो हीट कन्वर्ट होता है P इज इक्वल टू वी आई, V इज इक्वल टू आई आर, देन इट इज़ इक्वल टू द आई स्क्वायर आर। और जो थॉमसन इफ़ेक्ट है, वो थॉमसन इफ़ेक्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारा किसी भी कंडक्टर में जब टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, तो आइदर या वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या क्विट करेगा या रिलीज़ करेगा।
तो थॉम्सन कोफिशिएंट के लिए एक फार्मूले को हमने जनरेट किया है। ये जो फार्मूला जनरेट हुआ है वो करंट और जो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसके बीच में हमने ये फार्मूले को डिफाइन किया है कि जो थॉम्सन कोफिशिएंट है दैट वैल्यू इज इक्वल टू आई डेल क्यू बाई टी डी क्यू, सॉरी डेल को डी भी कह सकते हैं, पार्शियल चेंज ऑफ हीट, दैट इज डी क्यू टी बाई डी एक्स अपॉन डी टी बाई डी एक्स। तो ये चार आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है कि कैसे थर्मोइलेक्ट्रिक कन्वर्जन में हम चार डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हम इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब सेकंड जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ थर्मियोनिक कन्वर्जन। अब थर्मियोनिक कन्वर्जन में जो ये वर्ड है दैट इज़ ऑयन। ऑयन मीन्स मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारा मेटल है उस मेटल में कितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। तो डिफरेंट मटेरियल है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है। तो डिफरेंट मटेरियल में मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आइदर वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टू बी डिफर अकॉर्डिंग टू द force exists between the electrons movement. So in thermionic conversion, heat energy is directly converted into the electrical energy by utilizing thermionic emission effect. Electrons are emitted from the surface of heated metal. तो सपोज दैट ये कोई मटेरियल है, जब हम इस मटेरियल में हीट देंगे तो ये मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ये जो है इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करना शुरू करेंगे। तो इनके वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है जब भी हम किसी मटेरियल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर मटेरियल को हीट करते हैं, तो ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द मटेरियल द आयंस मूवमेंट, आइदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स मूव्स वेरी फास्ट. So by this principle we gain the energy. So in the solar radiation particular from the when the sun heat comes from the heat energy, and this heat energy is to be collected into the collector. In the previous lecture in the solar energy we discussed about the how the heat energy is converted into the form of electrical energy. तो जो ये बीच का प्रोसेस है, हमने कहा था कि जो हीट एनर्जी स्टोर हो रही है कलेक्टर में और डायरेक्ट कन्वर्ट कर रही है करंट में, तो वो हीट एनर्जी और करंट में जो कन्वर्ट करते हैं वो यही चारों जो हमने मेथड बताया था कि कोई भी कंडक्टर का यूज़ करेंगे, जो कि हमने सिलिकॉन डिस्कस किया था। इसके बीच में हमने सिलिकॉन के बीच में एक थर्मोकपल का भी वर्ड यूज़ किया है। उसका मतलब ही यही हुआ है कि जब टेम्परेचर हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की ओर आए तो जो टेम्परेचर है वो थर्मोकपल जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट में वो टेम्परेचर रिलीज़ ना हो, इस वजह से हमने थर्मोकपल का यूज़ किया। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल दैट हाउ द thermoelectrical conversion takes place, and in the next video we discuss about the thermionic conversion. So only the simple principle and how the phenomena occurs, the formula and formula generated by the thermionic conversion in the next video. Thank you.